Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you all students of Standard 7th to this our MCGM VTC online session. Students, today we are going to learn about indices, and in indices we are observing the index of the product or quotient of two numbers. यानी कि हम यहाँ पर कुव्वत नुमा में आज के सेशन में बच्चों बात कर रहे हैं दो आदात के हासिल ज़रब या दो आदात के खारिजी किस्मत के कुव्वत नुमा के बारे में. ठीक है, द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशिएंट टू नंबर्स. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर कि दो आदात के हासिल ज़रब या दो आदात के खारिजी किस्मत के कुव्वत नुमा को हम यहाँ पर किस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं दो आदात के हासिल ज़रब या दो आदात के खारिजी किस्मत के कुव्वत नुमा के बारे में. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स if a and b are any non-zero rational numbers and m is a positive integers. Okay, then we are supposed to see this kind of rule here or the formula here which is on your screen there کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کہ اگر اے اور بی کوئی غیر صفر ناطق اعداد ہوں اور ایم کوئی مثبت صحیح عدد ہو تو ہم یہاں پر اس طرح سے لکھیں گے کہ اے ضرب بی کاس کی قوت ایم، یعنی کہ کیا ہوگا، وہ ہوگا ایم کی قوت اے کی قوت ایم ضرب بی کی قوت ایم، اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اگر جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اے بٹے بی کاس کی قوت ایم ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا اے کی قوت ایم بٹے بی کی قوت ایم، اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، اے کی قوت ایم بٹے بی کی قوت ایم، اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، سو if ہم نے یہاں پر آبزرو کیا if انٹو بریکٹ a انٹو b raised to m is equal to a raised to m into b raised to m, like this. If as you are looking on your screen into bracket a upon b raised to m is equal to a raised to m upon b raised to m ہوگا. سو یہاں پر یہ پہلا اس کا طریقہ ہے جسے ہم نے یہاں پر آبزرو کیا ہے. Now we'll move for the example here. So on your screen you're observing 3 into 4 raised to 3 here. So it means اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو کاس ہے اس کاس کو کتنی بار ضرب ہے، 3 بار ہے نا، یعنی 3 into 4 into 3 into 4 into 3 into 4، اس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، سو یہاں پر ہم جیسے ان کو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کتنی بار ضرب ہے اسے کاس کو، تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ کاس کی قوت یہاں پر 3 ہے، اس کا مطلب ہے اس کاس کو کتنی بار ضرب کیا ہے، 3 بار ضرب کیا ہے. اوکے، سو یہاں پر ہم نے آبزرو کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے تو 3 یہاں پر لیا ہے، مینس 3 into 3 into 3 اور 4 into 4 into 4 into 4 اس طرح سے لیا ہے. اوکے، ناؤ یو ول آبزرو دیٹ 3 into 3 into 3 into 3 means 3 raised to 3 ہوگا. اسی طرح سے 4 into 4 into 4 means 4 raised to 3 ہوگا، اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے.
اسی طرح سے ہم یہاں پر ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ 3/4 کاس کی قوت 3 دیا ہوا ہے. اس میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کاس کو جو ہے تو کتنی بار ضرب کرنا ہے؟ اس کاس کو ہمیں 3 بار ضرب کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ ہم نے یہاں پر لیا 3/4 انٹو 3/4 انٹو 3/4. اٹ مینس 3 انٹو 3 انٹو 3/4 انٹو 4 انٹو 4 means 3/3/4/3 ہوگا اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. تو یہاں پر ہمیں جو قوت ہے، جیسے ہم نے یہاں پر آبزرو کیا یہاں پر کہ 3/4 کاس کی قوت 3 ہے، تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ 3 کی قوت 3/4 کی قوت 3 اس طرح سے ہوگا. جیسے کہ ہم نے یہاں پر اس کوشچن میں دیکھا کہ 3/4 کاس کی قوت 3 ہے. اس کا مطلب ہے کہ 3 کی قوت 3/4 کی قوت 3 اس طرح سے ہوگا، ہے نا. یہ ہم نے یہاں پر ابھی آبزرو کیا ہے، ہم نے ابھی یہاں پر دیکھا ہے اس طرح سے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں قوت نمائی عدد کی قوت، یعنی کہ دا پاور آف نمبر ان انڈیکس فارم. ٹھیک ہے، یعنی کہ قوت نمائی عدد کی قوت. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں کی اگر if A is any non-zero rational number and m and n are the positive integers, then یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ میں a کی قوت m اور بریکٹ کی قوت ہے n is equal to a raised to m into n ہوگا اس طرح سے، ہے نا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اگر a کوئی غیر صفر ناطق عدد ہو اور ایم این مثبت صحیح اعداد ہو، تو ہم یہاں پر کس طرح سے لکھیں گے اسے؟ کاس میں a کی قوت m کاس کی قوت n برابر a کی قوت m ضرب n ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچوں، اس سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر a کی قوت m ہے کاس کی قوت n ہے تو a کی قوت m ضرب n ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اصول آپ کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اسی پر بیس کرتے ہوئے ہمارے سارے کوشچنس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یاد رکھ لینا ہے، اسے یاد کر لینا ہے آپ کو اس کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایگزامپل ایک دیا ہوا اسکرین پر. کیا دیا ہوا اسکرین پر جو ایگزامپل ہے 4/3 بریکٹ ریز ٹو 2. سو 4/3 into 2 is equal to 3 into 2 means 4/6. Okay, like this. Now we'll move for the next example here. So in this example you are observing into bracket 5/-2 bracket raised to -4. So you will see here 5/-2 into -4. Okay, so you will see there the answer will be minus plus. So you will see there 2 into 4 means 8. So 5/8 will be the answer here, like this. تو بچوں آپ یہاں پر آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے دا پاور آف اے نمبر ان انڈیکس فارم، یعنی قوت نمائی عدد کی قوت کس طرح سے ہم معلوم کرتے ہیں. یہاں پر اس طرح سے ہمیں یہاں پر سمجھ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، ناؤ وی ول موو فار دا لاز آف انڈیکس، لاز آف انڈائسز. اوکے، یعنی قوت نما کے اصول کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے. سو آن یور اسکرین اف A is non-zero number and m and n are the integers. Okay, then تو یہاں پر ہمیں بچوں خیال رکھنا ہے، دیکھنا ہے، کیا یاد رکھنا ہے ہمیں یہاں پر کہ اگر A غیر صفر عدد ہے اور m n صحیح اعداد ہوں تو ہم اس صورت میں یہاں پر کیا آبزرو کریں گے، کیا دیکھیں گے؟ تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ a کی قوت m ضرب a کی قوت n برابر ہوگا یہاں پر
ए की इक्वल एम जमा एन के, ठीक है। यहाँ पर याद रखने बहुत इससे आपको याद रखने हमेशा आपको काम आएंगे ये उसूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। नाउ ए रेस टू एम divided by a raised to n, it means क्या होगा, ये a raised to m minus n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना है कि if a raised to 1 it means कि a it will be a, okay। यानी कि अगर हम देखते हैं कि कुव्वत अगर लिखी हुई यहाँ पर नहीं है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये अगर a है तो इट मीन्स a की कुव्वत 1 होगा, है ना। यानी कि अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a की कुव्वत 1 है यानी कि ये a है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़रब में जो है तो कुव्वतों की जमा हो रही है और तक़सीम में कुव्वतों की तफरीक होती है, ठीक है। इन डिवीज़न वी आर लुकिंग हेयर, it will be subtraction here, and then multiplication will be addition here. So we'll go for the next one, and you will see that if a raised to 0 it is 1, ठीक है। अगर a की ऊपर 0 है, सिफर है, इसका मतलब है a is equal to 1 होगा, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर जो उसूल है इंडाइसिस का उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर a की कुव्वत माइनस m है तो इसका मतलब है कि ये होगा 1/a की कुव्वत m के, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि अगर जैसे आप देख रहे हैं ये चौथा उसूल है कुव्वतनुमा का कि a की कुव्वत m a b की कुव्वत cos इक्वल m है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a की इक्वल m ज़रब इक्वल m, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर a की इक्वल m ज़रब इक्वल n। इस तरह से हम यहाँ पर याद रखिए इसे, a की इक्वल m ज़रब इक्वल m, इस तरह से, ठीक है। सो इफ देयर इज a b होल m raised to m into e raised to m like this. Now move for the next question here. And now here is you are observing a upon b raised to m is a raised to m upon b raised to m like this. Okay. Now we'll observe the next here. This one is the 8 laws of indices, this one, and you're observing a raised to n bracket raised to n means a raised to m into n होगा, इस तरह से, ठीक है। And now the 9th one is here on your screen. The laws of indices is here, 9th number. So a upon b bracket raised to minus m, it means into bracket a b upon a bracket raised to m like this. तो बच्चों यहाँ पर हमने इस तरह से देखा है कि अगर a b cos की कुव्वत m है तो यहाँ पर a की कुव्वत m ज़रब b की कुव्वत m होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर a/b एंड cos की कुव्वत m है तो इसका मतलब है a की कुव्वत m/b की कुव्वत m होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर a की कुव्वत m और cos की कुव्वत n दिया हुआ, इट मीन्स यहाँ पर कुव्वतों की क्या हुई है, ज़रब हुई है ना, यानी a की कुव्वत m ज़रब n, इस तरह से होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि a/b cos की कुव्वत -m दिया हुआ है, इट मीन्स b upon a cos
cos इक्वल m होगा, ठीक है, इसे हमें याद रखना है, ठीक है। नाउ विल मूव फॉर द एक्सरसाइज क्वेश्चन here, प्रैक्टिस सेट 29, ठीक है। यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है हमें, पेज नंबर 48 से ये एक्सरसाइज हमने ली है, ठीक है। सो ऑन योर स्क्रीन देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पर 15/12 cos इक्वल 3, और इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बड़ा cos है उसकी इक्वल कितनी है, 4 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे पहले की एग्जाम्पल अगर आपने देखी है तो आपको ज़रूर से याद होगा बच्चों, देखा था, ऑब्जर्व किया था। यहाँ पर हमें है इसकी 3 ज़रब 4 हमने यहाँ पर किया है ना, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर, कुव्वतों की ज़रब की है ना, ठीक है। जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा था सिमिलरली वैसे ही हमने यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जवाब क्या मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा यहाँ पर 15/12, 3 to 4 is 12, यानी कि cos इक्वल जो है तो 12 होगी, इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे सवालात हल कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे सवालात हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, सवाल देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया हुआ है 3 की कुव्वत 4 दिया है, और cos की कुव्वत क्या दिया है, वो दिया है नफ़ी 2 दिया है, क्या दिया है, नफ़ी 2 दिया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ भी जो है तो क्या देखना है, अब अगर इस तरह से जो सवाल है, जिस सवाल का हम यहाँ पर मुशाहिदा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पर यहाँ भी हम देखें कि जो कुव्वतें हैं उसकी आपस में ज़रब होगी, है ना। तो यहाँ पर हम सिमिलर लेते हैं 3⁻4 इंटू -2, सो आंसर विल बी 3⁻⁻8 मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स 8, okay, 4 into 2 means 8, so 3⁻⁻8 will be the answer here. So like this we can solve so many questions, okay। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 1/7, ठीक है, और cos में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया है -3 इसकी कुव्वत, और cos की कुव्वत जो है तो वो दिया है 4। तो यहाँ पर हम सिमिलरली वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया था। 1/7 ब्रैकेट रेज़ टू -3 इंटू 4 मीन्स 1/7 रेज़ टू 3 इंटू 4 मीन्स 12, सो 1/7 रेज़ टू -12, ओके, लाइक दिस वी कैन गेट द आंसर। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है 6 की कुव्वत 5 दिया हुआ है, और cos की कुव्वत 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, cos की कुव्वत और 6 की जो कुव्वत दी हुई है उसकी आपस में हम यहाँ पर ज़रब करेंगे। तो यू विल सी हेयर क्या हुआ यहाँ पर आंसर, 5 इंटू 4 मीन्स क्या होगा, 6⁻5 इंटू 4 मीन्स 26⁻20, लाइक दिस। तो बहुत आसानी से हम इस तरह के सवालात के जवाब अखज़ कर सकते हैं, ओके। सो विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर, एंड ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ अ क्वेश्चन 6/7 ब्रैकेट रेज़ टू 5 ब्रैकेट रेज़ टू 2, so 6/7 raised to 5 into 2, 5 into 2 means 10, okay, so answer will be 6/7
bracket raised to 10 will be the answer here. So now we'll move for the next question here, and on your screen there is a question, and 2 upon 5 raised to minus 2 bracket raised to 3 minus 3. Okay, now we are supposed to see here, यहाँ पर कौन सी बात को ध्यान में रखना है बच्चों, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देना है. -2 इंटू -3 है. सो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है ना. तो 3 इंटू 2 करें हमने तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 3 इंटू 2 किया तो हमें यहाँ पर 6 मिलेगा. ओके, तो 2 अपॉन 5 रेज टू 6 विल बी द आंसर हियर. ओके, इस तरह से हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि जवाबात हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 29 से हम ये आगे के सवालात ले रहे हैं. यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 5/8 कॉसिक्वत 3 ज़रब कॉसिक्वत, यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, कॉसिक्वत -2 दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है 5/8 रेज टू दिस ब्रैकेट 3 into -2. So answer will be 3 into -2 means 5/2 raised to -6. 3 into 2 means -6. Okay, so this will be the answer for this question. Now we'll see the next question here, and on your screen there is a question 3/2 bracket raised to -4 and bracket raised to 5. So now what suppose we have to do here, we are supposed to multiply -4 into 5 like this. Okay, so similarly we have done here 2/3 bracket raised to -4 into 5. So answer is on your screen there. 5 into -4 means 2/3 raised to -20 will be the answer here. Okay, so like this we can do many questions. Now we'll move for the next question. On your screen, students, there is a question on your screen. What is the question is here, 2/5 bracket raised to -3 bracket raised to 2. So यहाँ पर आप जैसे बच्चों मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है, इस सवाल को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं. 10वां सवाल है इस एक्सरसाइज का. तो उसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया है सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है. ब्रैकेट यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसकी कुव्वत जो दी गई है -2 इंटू 2 दिया हुआ है. सो -3 इंटू 2 करें हमने तो यहाँ पर हमें क्या जवाब मिलेगा, 2/5 होना चाहिए ना, यहाँ पर 2/5 होना चाहिए. 2/5 रेज टू -6. Okay, this will be the answer here. Okay, like this. इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं जो 9वां सवाल है, उस सवाल का मुशाहिदा कर लेते हैं हम. यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 कॉसिक्वत 6 कॉसिक्वत 1 दिया हुआ है. ठीक है, तो 3/4 कॉसिक्वत क्या करना है हमें, यहाँ पर 6 ज़रब 1 करना है. यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर 6 का 6, यानी कि हमें जवाब क्या मिलेगा, 3/4 कॉसिक्वत 6. इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर होगा. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा बच्चों कि बहुत ही आसान है ये, और सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरी है लॉज ऑफ इंडाइसिस वो याद रखना है हमें, है ना. तो हमने हल्का सा यहाँ पर मुशाहिदा किया है, हमने यहाँ पर हल्का सा जो है तो सारे जितने भी हमारे लॉज है, 9 लॉज है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n देखा
की, यानी कि क्या होगा वो उस सूरत में। तो हमने देखा यहाँ पर कि a⁻m+n होगा, है ना। इसी तरह से अगर a की क़ुव्वत m है और तकसीम a की क़ुव्वत n है तो क्या जवाब हमें निकालना होगा उस सूरत में, क्या हमें आंसर मिलेगा। तो हमें आंसर मिलेगा a⁻m-n, है ना। इसी तरह से हमने देखा कि अगर a की क़ुव्वत 1 है यानी इसका मतलब है a होता है, ठीक है। इसी तरह से a की क़ुव्वत अगर 0 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से हमने देखा कि a की क़ुव्वत अगर m है तो हमने देखा यहाँ पर 1/a हो, a की क़ुव्वत m इस तरह से होगा। फिर इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ab cos की क़ुव्वत m है तो इसका मतलब है a की क़ुव्वत m ज़रब b की क़ुव्वत m इस तरह से होगा। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर कि a/b cos की क़ुव्वत m है तो इसका मतलब है a की क़ुव्वत m/b की क़ुव्वत m होगा। इसी तरह से 7वां उसूल हमने देखा कि a की क़ुव्वत m cos की क़ुव्वत n है तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a की क़ुव्वत mn मिलेगा। इसी तरह से हमने देखा 9वां इसका जो उसूल है लॉज ऑफ इंडाइसिस में, वो देखा हमने a/b cos की क़ुव्वत m यानी कि b/a cos की क़ुव्वत m होगा, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज के सेशन में हमने जो भी मालूमात आपको दी है इसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा। सेशन के बाद बच्चों आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।